Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study about governor, the role of governor and the issues attached to it. But before we move forward, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. So let's begin the topic of governor. So governor is basically the executive head of the state. It has been discussed in our constitution from article 153 to article 162 in part 6 of the constitution. It works in the same way as the machinery, governing machinery of the central government. The governor has a dual role. First, that he is the constitutional head of the state and is bound by the advice of council of ministers. The second role is that he functions as a vital link between union government and state government. The president appoints governor and he remains in office for 5 years or till the pleasure of the president. The eligibility, अब eligibility पे आते हैं. गवर्नर की eligibility क्या है? That he must be a citizen of India, he must be at least 35 years of age, he must not be a member of either house of parliament or house of state legislature and he must not hold office of profit. ठीक है, ये 4 conditions हैं जो गवर्नर की एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है. एक बार और यह ध्यान में रखना हमें है कि जिस स्टेट में गवर्नर अपॉइंट होता है तो गवर्नर उस स्टेट का सिटीज़न नहीं है. जैसे उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, तो जो भी गवर्नर होगा वो उत्तर प्रदेश का नहीं होगा. जैसे आनंदीबेन गुजरात की हैं, तो गुजरात का इंसान यूपी का गवर्नर बन सकता है, मगर यूपी का इंसान यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता है. नाउ वी कम टू द टर्मिनेशन. गवर्नर अपनी पोजीशन से हटाए कैसे जा सकते हैं. ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. द डिसमिसल ऑफ द गवर्नर कैन नॉट बी हेल्ड विदाउट अ वैलिड रीजन. However, it is duty of the president to dismiss governor if the act is upheld by the court as unconstitutional or malified. मतलब कि गवर्नर को एक बिना वैलिड रीजन के बिना वैलिड रीज़न के गवर्नर को हटा नहीं सकता है प्रेसिडेंट. हालांकि जब कोर्ट ये अपहेल्ड कर दे कि जो भी एक्ट था गवर्नर का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और मैलाफाइड था, तो उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो गवर्नर को डिसमिस कर सकता है. मैलाफाइड मतलब कि बैड इंटेंशन से, रॉन्ग इंटेंशन से कोई गलत काम कर रहा हो, तो उसको मैलाफाइड बोलते हैं. द गवर्नर कैन ऑल्सो गिव हिज रेजिग्नेशन to the president to be removed from his office. Now we come to role and power of the governor. So governor give action to the bill passed by the state legislature. Governor appoint chief minister and other minister. And the third role is that he sends report to the president on the state of affairs. मतलब कि या वो बिल को एक्शन देते हैं, उसका रोल अपॉइंटमेंट का है एंड ही हैव द पावर एंड ही हैज़ टू सेंड रिपोर्ट. जो भी स्टेट में हो रहा होता है उसकी रिपोर्ट उनको प्रेसिडेंट को देनी होती है. However, these roles and power are often subject to discretion of governor, which can lead to conflict with the elected state government. पूरा जो इशू है गवर्नर के रोल का वो डिस्क्रिशन पे ही मतलब रिवॉल्व करता है, उसी के अराउंड होता है. बेसिकली गवर्नर को एक केज पैरेट भी बोलते हैं, उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी बोलते हैं, जो कि जो भी कोई भी नया गवर्नमेंट यूनियन में बनता है एक पहला काम ये होता है कि वो गवर्नर्स बदलने लगते हैं, है ना. तो ये एक इम्प्लीकेशन होता है कि गवर्नर एक्ट एज अ सेंट्रल एजेंट, वो सेंटर का एजेंट होता है. तो जो डिस्क्रिशन होता है गवर्नर का वो इफेक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली जो यूनियन कहता है वो गवर्नर कर रहा होता है. There have been cases such as in Tamil Nadu where governor had delayed or withdrawn the assent to the bill or withheld the assent to the bill, dismissed or dissolved state government and recommended president rule or interfere in the functioning of state universities. These acts have been criticized as arbitrary, partisan or unconstitutional as the state government by the state government or the opposition parties. तो जो हमने विदहेल्डिंग ऑफ एसेंट के बारे में पढ़ा है वो पावर गवर्नर को मिलती है आर्टिकल 200 से, जिसमें ये ले डाउन किया गया है कि व्हेन अ बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर देयर एसेंट एंड द गवर्नर हैज़ 4 ऑल्टरनेटिव. that he may give assent to the bill, he may withhold assent to the bill, that is reject the bill, in which case the bill fails to become a law.
he may return the bill for reconsideration to the state legislature or he may reserve the bill for the consideration of the president. तो जो मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है, यही जो कि इशू है, यही हमारा क्रक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इन शमशेर सिंह केस 1974 में ये बोला है कि गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर while withholding assent or returning bill to the state legislature. गवर्नर का खुद का डिस्क्रिशन नहीं होता है. he has to act per the advice of council of minister. And article 163 of the constitution says that governor will normally be aided and advised by the council of minister except in those functions which requires his discretion. बेसिकली गवर्नर एज प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट अपने से कोई काम नहीं कर सकता है, वो सारा काम एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से करता है. इन द सिमिलर वे गवर्नर अपने से या अपने सेटिस्फैक्शन से कुछ नहीं करता है. ओनली ही फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. केवल जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है, मतलब जब एक स्टेट में इलेक्शन होता है एंड ही कॉल्स द पार्टी हु हैज़ वॉन मेजॉरिटी टू कम एंड मेक हिज गवर्नमेंट, एट दैट टाइम ही हैज़ अ डिस्क्रिशन विदाउट कोई ऊपर के प्रेशर का, एक्सेप्ट इन दैट केस बाकी सारे जो उसके डिस्क्रिशन होते हैं ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. So when can governor exercise the discretion? The governor must reserve certain bill like those which reduce the power of High Court for consideration to the president. He can reserve bill on concurrent list that are repugnant to the union law based on ministerial advice. It is only under rare circumstances that governor may exercise his discretion where they feel that the provision of the bill will contravene the provision of the constitution and therefore should be reserved for the consideration of the president. It must however be noted that constitution does not lay down the time limit. ये भी एक फैक्टर है, टाइम लिमिट नहीं दिया है कि कब तक वो जो बिल है वो विदहेल्ड कर सकता है, रोक सकता है. The return of any bill to the state legislature for reconsideration is also done based on ministerial advice. जब उसको रिटर्न करता है कि उसको वापस से भेजो, वो भी मिनिस्टीरियल एडवाइस पे ही हो सकता है. However, governor in the past have exercised their discretion in returning bills like Tamil Nadu governor with respect to prohibiting of online gaming. Okay, the governor shall accede to the bill if it is passed again by the state legislature. As president में भी यही होता है कि अगर कोई बिल उनके पास आता है एंड वो वापस पार्लियामेंट में भेजते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, तो उसके बाद वहाँ से वापस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास होता है. उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज सिग्नेचर. इन द सिमिलर फैशन अगर जब गवर्नर कोई बिल को वापस रिटर्न करता है लेजिस्लेचर में और वहाँ पे वापस से पास होके जब गवर्नर के पास आता है, इन दैट सिनेरियो गवर्नर हैज़ गिव द एसेंट टू द बिल एंड देन द बिल बिकम्स द लॉ. Court priority for returning a bill. The Supreme Court has reminded to the governor time and again that he expects a decision to return the bill to the state legislature for reconsideration and it should be made as soon as possible. So basically ये है कि जब कोई बिल withheld करता है अपने पास गवर्नर, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना होगा या उस पर डिसीजन देना होगा. पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है. ठीक है, देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. Also, there is no constitutional provision in case of disagreement. There are no provision laid down in the constitution for the manner in which the governor and the state must engage publicly when there is a difference of opinion, which means that it would be constitutionally impermissible for the governor to withhold the bill indefinitely without communicating their decision to the house. और ये भी एक बात है कि इन सब से हमें ये भी समझ में आता है कि वो परमानेंटली हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता, उसको डिसीजन पे आना होता है. पर हाँ, ये एक लंबा गैप हो जाता है एंड ये गैप इसलिए होता है और गवर्नर ये इसलिए कर सकता है बिकॉज गवर्नर इज सिक्योर इन द नॉलेज दैट एज लॉन्ग एज दे have the power in the union government, they will continue to hold their position as the governor, as the head of the state. They are not even answerable to the court for their action when they are in office. It has given under Article 367, which makes them secure of their position.
एंड विच इन दैट इज़ वाई दे एक्ट आर्बिट्ररी, है ना। कुछ कंडीशंस हो जाते हैं और कुछ सिनेरियो में इस जो सिक्योरिटी है, ये ओवर जो सिक्योरिटी उनको मिल जाती है, इस वजह से वो जो है उनको लगता है कि ओके ये मेरी पोजीशन है, मैं नहीं दूंगा, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, तो दे अपनी मनमानी कर लेते हैं वो इन सिनेरियो में। और ये क्योंकि कोई प्रोविज़न नहीं है इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल नहीं होता है, बट इट हैम्पर्स द गवर्निंग ऑफ द स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना गवर्नेंस सही से नहीं कर सकती है। इसके लिए कमिटीज़ भी बनी है। सरकारिया कमीशन बना है 1987 में, पूंजी कमीशन बना है 2010 में, जिसमें इन दोनों ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए गवर्नर अपना बिल विदहेल्ड कर सकता है और उतने पीरियड के अंदर उसको डिसीजन मेकिंग करनी होगी। इन दोनों ने 6 महीने का समय दिया है कि विद इन 6 मंथ उनको अपना एक्सेंट देना होता, मगर अभी तक ये दोनों कमीशन की रिकमेंडेशन, सरकारिया कमीशन 1987 एंड पूंजी कमीशन 2010, इनको जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये जितना भी इशू क्रिएट होता है बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो सारे इशू इससे एटलीस्ट 50 to 60% सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक गवर्नर का, उसका रोल और उसके रिलेटेड इश्यूज। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।